हां झालं. रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसे स्टेट बोर्ड में क्या दिया है कि पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, करेक्ट. स्टेट बोर्ड में सबसे पहले उन्होंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिया है, उसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिया है. लेकिन हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट लेसन सीखा ना इसके पहले वाला एनसीईआरटी से, तो उसमें ये पूरा पोर्शन मैंने पहले से आपको सिखाया है नेचुरल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. हमने ये सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस है वो भी देखा था. सिंगल पेरेंट एंड टू पेरेंट्स आर नीडेड इन सिंगल पेरेंट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टू पेरेंट्स आर नीडेड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस प्रकार से. और द मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर फ्रेगमेंटेशन या बडिंग हो सकता है, स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है. ये जूस्पोर्स क्लामिडोमोनास के आपको नज़र आ रहे हैं. और स्पेसिफिकली प्लांट्स में जैसे देखिए प्लांट्स में आर्टिफिशियल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. और आर्टिफिशियल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो अलग अलग मेथड्स है वो है बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग and tissue culture. Budding, grafting, layering and tissue culture. These are artificial asexual reproduction methods. इसमें भी जो छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनेंगे दे आर क्लोन्स ऑफ देयर ओन मदर प्लांट. क्योंकि टिश्यू कल्चर में भी हम देखते हैं कि जो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसी के छोटे छोटे सेल क्लस्टर्स बना के फिर टेस्ट ट्यूब में डाल के फिर हर एक टेस्ट ट्यूब में एक छोटा छोटा प्लांटलेट बनेगा. तो ये प्लांटलेट जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ देयर ओन मदर प्लांट बिकॉज they are not forming by formation and fusion of gametes. If there is formation and fusion of gametes, then that method is called as sexual reproduction. If there is no any formation and fusion of gametes, then the method is known as asexual reproduction. Clear? Vegetative reproduction. Plants reproduce asexually through their vegetative parts. So what do you mean by vegetative parts? I am taking from state board because more properly the artificial methods of asexual reproductions are given here. Hence I am taking from state board. Plants reproduce asexually through their vegetative parts. आप यहाँ पे vegetative parts को underline करके लिखिए. This is page number 2 from state board. So you can write all parts other than that of flower, seed, etc. which help in sexual reproduction. All parts other than that of flower, seed, etc. which doesn't help in sexual reproduction are called vegetative parts. Which doesn't help in sexual reproduction are called vegetative parts. Example: branch, root, leaf, ओके. लिफ हो सकता है, ब्रांच हो सकती है, रूट्स हो सकते हैं. दीज आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव पार्ट्स. इवन अ स्मॉल वेजिटेटिव मेरिस्टेमेटिक रीजन विच इज़ यूटिलाइज्ड इन टिश्यू कल्चर दैट इज़ नोन एज वेजिटेटिव पार्ट. जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, टिप है ना प्लांट का, विच इज़ यूटिलाइज्ड इन टिश्यू कल्चर, दैट इज़ नोन एज
vegetative form, vegetative part. Hence, the new plants formed are genetically identical to their parents. There are also few methods which would not occur naturally in the plants. Agriculture and horticulture exploit vegetative reproduction in order to multiply fresh stocks of plants. Artificial methods are used to propagate desired varieties according to human requirements. The various methods are as follows. मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करके देती हूँ asexual reproduction in plants. देखिए, all these are the methods by which asexual reproduction occurs in plants as well as other creatures like prokaryotes, bacteria, etc. तो binary fission occurs in one minute. Binary fission occurs in bacteria, amoeba, budding in yeast, and hydra spore formation. Motile spores are formed in the chlamydomonas and non-motile spores in fungi, etc. I think we have seen all these small things about the asexual reproduction in first chapter, which is given in NCERT, reproduction in organisms. That complete is telling us about asexual as well as sexual reproduction. देखिए, दिस इज़ नोन एज बाइनरी फिजन. यहाँ पे भी आपको बाइनरी फिजन ही दिख रहा है. हाँ, बैक्टीरिया में ये न्यूक्लियोइड है, इसका डीएनए जो कि डिवाइड हो रहा है. फर्स्ट द न्यूक्लियोइड इज़ डिवाइडिंग एंड देन देयर इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. यानी सबसे पहले क्या होता है, बैक्टीरिया में जब बाइनरी फिजन हो रहा है तब उसका न्यूक्लियोइड डिवाइड होके 2 में कन्वर्ट होता है और उसके बाद कंप्लीट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है. जैसे हम सेल डिवीजन के समय क्या देखते हैं, फर्स्ट देयर इज़ कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस. सिमिलरली हियर यू कैन सी देयर इज़ न्यूक्लियोइड डिवीजन एंड देन दिस इज़ नॉट नोन एज कैरियोकाइनेसिस बिकॉज कैरियोस का मतलब होता है न्यूक्लियस. तो ये कैरियोकाइनेसिस हम सीधे सीधे इसे क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इन बैक्टीरिया में न्यूक्लियस रहता ही नहीं है. क्या है जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोइड. सो वी विल सी इट एज न्यूक्लियोइड डिवीजन एंड देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन टू फॉर्म 2 बैक्टीरिया लाइक दिस. दिस इज कोकाई, दिस इज बैसिला, जिसमें बाइनरी फिजन आप लोगों को नज़र आ रहा है. दिस इज बाइनरी फिजन. देन बडिंग इन हाइड्रा एंड ईस्ट. दिस इज सैकरोमाइसिस सेरेविसी. ईस्ट में बडिंग दिख रहा है, छोटा सा एक बर्ड पॉपअप होता है और दैट विल देन डिटैच फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ हिज ईस्ट, सैकरोमाइसिस सेरेविसी. हियर अगेन एट द लोअर 1/4 region of hydra's body, one bird will emerge out. It will develop tentacles and then it will detach from the mother body. It will swim for some time with the help of lashing tentacles and then again settle on another branch or away from the mother hydra, because that also have to get some food. If it is implanting itself very near to the mother hydra, then it will not be able to perceive food. So it will swim for some time and then will attach itself to another substratum and there it will grow into the larger hydra. It will show its growth. ये इस प्रकार से होता है हाइड्रा का बर्ड. और स्पोर्युलेशन, यहाँ पे थोड़ी सी लंबी लाइफ साइकिल है, आपको पता है. यानी सीधे सीधे नहीं है कि एनी डिप्लॉयड सेल will divide by meiosis to form gametes and 2 gametes will fuse together to form zygote. This is the simple life cycle which is shown by animals but not by plants.
In plants, the meiocyte or spore mother cells will divide by meiosis to form spores, and spores will germinate to form gametophyte, and gametophyte will show formation of gametes, and gametes will fuse together to form zygote, and zygote will form sporophyte. zygote से sporophyte, spore से gametophyte. फिर से एक बार, zygote से स्पोरोफाइट, गमेट से zygote से स्पोरोफाइट करेक्ट है, बट गमेट्स विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म zygote, एंड स्पोर से गमेटोफाइट. दिस इज करेक्ट. स्पोर से क्या फॉर्म होगा? गमेटोफाइट, एंड गमेट से zygote. Gametes will fuse together to form zygote, and zygote is diploid, gametes are haploid, gametes are produced in gametophyte. Why that particular plant body is called as gametophyte? Because the gametes are produced in that. So gametes are produced in gametophyte. ये सर्कल यहाँ पे भी वही है. जैसे किंगडम प्लांटी और रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, दे आर नॉट टू डिफरेंट चैप्टर्स. They are totally intermingled with each other. Hence, we must go through comparative study of various plant forms or plant divisions. Kingdom Plantae में आने वाली सभी divisions ये एक दूसरे से related होती है, starting from algae to angiosperms. This is regeneration. Regeneration is best seen in Deutzesia or Planaria. हाँ, ये प्लानेरिया है, उसको ना कभी ड्यूजेसिया भी बोलते हैं. ये स्टारफिश में भी दिख रहा है आपको रीजनरेशन. वैसे रीजनरेशन ये न्यूट के लिम्स में, ये एम्फीबिया है. न्यूट इज़ वन एम्फीबिया. वो भी अपने लिम्स फिर से प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन पूरी बॉडी नहीं. जैसे प्लानेरिया अपनी पूरी बॉडी प्रोड्यूस करता है, वैसे ये नहीं, ये लिम्स अगर इसके कट जाते हैं तो फिर से प्रोड्यूस करते हैं. वैसे कुछ जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी टेल अलग हो जाती है. जैसे वॉल लिजार्ड की आपने देखी, छिपकली की टेल अगर अलग हो जाती है तो वहाँ पे फिर से टेल छिपकली नहीं प्रोड्यूस करती, लेकिन छिपकली फिर से टेल प्रोड्यूस कर सकती है. सो दिस इज़ अगेन रीजनरेशन. ये स्टारफिश में भी बहुत अच्छे से आपको दिखता है, तो ये लिख लीजिए, रीजनरेशन ऑफ लिम्स और स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी. रीजनरेशन ऑफ लिम्स और स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी डैश न्यूट एम्फीबिया. न्यूट इन ब्रैकेट एम्फीबिया produces limb, reproduces limb, ऐसे हम बोल सकते हैं. reproduces क्योंकि वो कट जाए तो फिर से प्रोड्यूस होता है. then tail in various reptiles. regeneration in some parts. regeneration in some parts dash न्यूट एम्फीबिया. मैं शॉर्ट में बता रही हूँ. न्यूट इज एम्फीबिया एंड दैट विल रीजनरेट व्हाट? लिम्ब. न्यूट एम्फीबिया लिम्ब. वैसे ही सम रेप्टिलियंस कैन रीजनरेट टेल, एंड स्टारफिश अगेन इट्स वन ऑफ द आर्म और 2-3 ऑफ द आर्म्स, है ना. यानी ये दोनों आर्म्स अगर इनकी कट गई ना तो फिर से वो रीजनरेट हो सकती है. सो रीजनरेशन इज अगेन सीन इन स्टारफिशेस ऑफ सम ऑर्गन्स. तो ह्यूमंस में भी रीजनरेशन होता है क्या? स्किन की सेल्स का होता है. यानी आपको अगर कुछ लगा है, वाउंड फॉर्मेशन वहाँ पे हुआ है, तो रीजनरेशन वहाँ पे होता है. कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएंगे. दैट इज़ नॉन एज हीलिंग. तो हीलिंग तो होता है. और रीजनरेशन दिखाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा लीवर. ये भी लिख लीजिए. रीजनरेशन कैन बी बेस्ट सीन इन लीवर. regeneration can be best seen in liver.
ये एस्कोमाइसिटीज़ की लाइफ साइकिल यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज द एग्जाम्पल ऑफ पेनिसिलियम स्पोर्स इज़ गिवन इन योर स्टेट बोर्ड। तो एस्कोमाइसिटीज़ में ही पेनिसिलियम आता है, और एस्परजिलस, साइकरोमाइसिस सीरिविसी, न्यूरोस्पोरा क्रासा, ऑल ऑफ देम कम इन एस्कोमाइसिटीज़। तो एस्कोमाइसिटीज़ की एक लाइफ साइकिल हम देख लेते हैं। वी कैन कंपेयर द लाइफ साइकिल विद द लाइफ साइकिल ऑफ एनी अलगी। तो पहले ये लाइफ साइकिल देखते हैं, उसकी कंपैरिजन हम किसी भी अलगी की, जैसे क्लैमिडोमोनास की, स्पायरोगैरा की लाइफ साइकिल होगी, उसके साथ भी करेंगे। यू सी देयर बॉडी इज़ थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब है फिलामेंटस बॉडी। इनकी बॉडी देखिए कैसे फिलामेंटस है। ऐसे ही स्पायरोगैरा या किसी कॉलोनियल अलगी की होती है कि नहीं। कॉलोनियल अलगी यानी द सेल्स आर सेपरेट, दे आर लिविंग इंडिपेंडेंटली बट इन कॉलोनी। हर एक सेल एक दूसरे से टोटली अलग है, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल यू सी our body cells, they all are depending on each other and they are working collectively, but that is not the case with Spirogyra or various green algae. उनमें क्या होता है कि every cell can regenerate but still they live together in colony. तो वैसे ही फंजाई की सेल्स है, every cell can regenerate, जैसे ये जो माइसेलियम आपको दिख रहा है ना, इसका एक हाथ टुकड़ा किसी और जाके वहाँ पे डिकेइंग मैटर और मॉइस्चर और टेम्परेचर अगर उससे अवेलेबल है, मैंने 3 चीज़ें बताई। सैप्रोफाइट्स के बढ़ने के लिए क्या चाहिए? डिकेइंग मैटर, मॉइस्चर एंड प्रॉपर टेम्परेचर। तो वो अगर उनको अवेलेबल है तो वहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा भी फंगस का या एक छोटा सा स्पोर भी फंगस का थ्राइव कर सकता है। हाँ, यानी पूरी बॉडी ही लेके जानी पड़ेंगी क्या? नहीं, बिकॉज ऑल सेल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो दिस इज थैलॉइड बॉडी। हियर वी आर लर्निंग अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस सर्कल को हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे गमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सो दिस सर्कल इज टेलिंग अस अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हियर 2 cells are fusing, haploid cells are fusing to form zygote, hence this is called as sexual reproduction. So during asexual reproduction, what is happening? There is formation of spores. In fungi, asexually formed as well as sexually formed spores are there. In ascomycetes, asexual reproduction is by conidia formation and sexual reproduction is by ascus formation. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असाई, एस्कस का ही प्लूरल फॉर्म है असाई। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय एस्कस फॉर्मेशन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोनिडिया फॉर्मेशन। सो वी कैन सी हियर, ये जहाँ पे असेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है उन्हीं को हम कोनिडिया बोलते हैं, लेकिन कोनिडिया का स्ट्रक्चर हर एस्कोमाइसिटीज़ में आने वाले फंगस में अलग है, क्योंकि वो अलग अलग स्पीसीज़ है ना। जैसे न्यूरोस्पोरा इज सेपरेट दैन दैट ऑफ ईस्ट और एनी अदर फंजाई। सो हियर ये कोनिडिया फॉर्मेशन से जो स्पोर फॉर्म हुए ना, वो जब जर्मिनेट हो जाते हैं तब ये फिलामेंट फिर से माइसेलियम उसका बाहर निकल रहा है। देखिए इससे बोलते हैं माइसेलियम, और माइसेलियम की एक ब्रांच उससे बोलेंगे हाइफी। Mycelium is the filamentous fungus body and its branch is called as hyphae. Mycelium is filamentous fungal body and its branch is known as hyphae. So a branch is produced here and that will grow and that may enter into the sexual reproduction, and we know that sexual reproduction will occur in unfavorable conditions in algae and fungi. This is very important concept. Sexual reproduction occurs during unfavorable condition and asexual reproduction occurs during favorable conditions in algae and fungi. ऐसा इसलिए, और various other लोअर क्रीचर्स द सेम थिंग ऑकर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन प्रोड्यूस होने वाले हैं
और अनफेवरेबल कंडीशन गुजर जाने के बाद कौन सी कंडीशन रहने वाली है ये इस स्पीसीज़ को पता ही नहीं है, इसीलिए वो वेरिएशंस क्रिएट करते हैं। जैसे एक माँ बाप को 4-5 बच्चे हुए, एक बच्चा बहुत ही ताकतवान था जिसका शरीर बहुत बड़ा है और एनर्जी है उसके पास, ताकत है। दूसरा बहुत होशियार, तीसरा मेडिटेशन करने वाला, ऐसे 3-4 प्रकार के बच्चे। अब अगर उनके ऊपर विपदा आती है तो बहुत सारे प्रकार की, मैं 2 प्रकार आपको बता सकती हूँ कि एक घर के ऊपर किस प्रकार की विपदा आ सकती है। एक तो घर में रात को चोर आ सकते हैं, तो तब कौन काम आने वाला है? जो ताकतवान बच्चा है वो। नहीं तो कोई ऐसी स्थिति आएंगी कि जिसमें दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब जल्दी जल्दी निर्णय लेने हैं, तब जो नॉलेजेबल बच्चा है वो काम आएगा। ये अनेक प्रकार हर एक स्पीसीज़ के सामने आ सकते हैं, इसीलिए वेरिएशन की ज़रूरत है। तो वेरिएशंस ये अब कौन से प्रकार है हर एक के आगे, वो तो डिपेंड करता है वो कहाँ पे रहते हैं उस पर। ये ह्यूमन स्पीसीज के बारे में मैंने बताया। हेंस द वेरिएशंस आर नीडेड एंड इफ वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड देन एंड देन ओनली स्पीसीज कैन सस्टेन इटसेल्फ, हेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स। सो दैट इज द great significance of sexual reproduction, that it creates variation and variations are necessary for evolution. तो ये बार बार मैं आपको बताती हूँ क्योंकि इन कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। यू मस्ट बी कंसेप्चुअली क्लियर, बट दैट डजेंट ऑकर ड्यूरिंग अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जैसा पेरेंट सेल है ना, बिल्कुल वैसे के वैसा ये डॉटर सेल होने वाला है। इसमें कोई अलगपन है नहीं, लेकिन इसके लिए कम एनर्जी लगती है। तो अगर सब फेवरेबल कंडीशंस है तो खुद को बढ़ाने के लिए ये क्यों ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करेगा? ज़रूरत नहीं है। खुद को बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, ज़्यादा एनर्जी मत इस्तेमाल करो, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट हियर gamete production and gametic fusion and again the meiosis in zygote that requires more energy. So this is the difference between sexual reproduction and asexual reproduction. ये पूरे रिप्रोडक्शन चैप्टर का बेसिस, यूनिट का बेसिस है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, देन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, देन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये ऐसे 4 चैप्टर्स आपके इसमें दिए हैं रिप्रोडक्शन यूनिट में, एंड ऑल ऑफ देम दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस इज कोनिडिया। यहाँ पे कोनिडिया दिया है क्या? माइसेलियम है, और ये बेसिडियोकार्प यानी बेसिडियोमाइसिटीज का दिखाया है। इसके पहले जो था वो एस्कोमाइसिटीज की लाइफ साइकिल थी, ये बेसिडियोमाइसिटीज की लाइफ साइकिल है जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिख रहा है। आई थिंक वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर डिफरेंस, the difference in between ascomycetes and basidiomycetes. Here only sexual reproduction, and in asexual reproduction, in ascomycetes asexual as well as sexual reproduction occurs. So here only what is happening? Sexual. Basidiomycetes only sexual, and deuteromycetes only asexual reproduction occurs. And in phycomycetes and ascomycetes both sexual and asexual reproduction occurs. So this is life cycle of basidiomycetes. मशरूम वगैरह बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं, एडिबल फंगस जो रहते हैं, हाँ, जिसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ क्लामाइडोमोनास विच इज फ्लैजेलेटेड यूनिसेल्युलर algae, eukaryotic unicellular green algae which can divide itself very fast. क्लेमाइडोमोनास में ये जूस्पोर का फॉर्मेशन, इसमें भी अगर हम देखते हैं तो सेक्सुअल और असेक्सुअल साइकिल्स आपको अलग अलग से दिख रही है। असेक्सुअल कब होंगी? जब ऑल फेवरेबल कंडीशंस आर प्रेजेंट, एंड सेक्सुअल व्हेन अनफेवरेबल कंडीशंस आर देयर। तो सेक्सुअल लाइफ साइकिल में क्या हो रहा है? दीज टू आर कॉल्ड एज विच काइंड ऑफ गैमेट्स? Isogametes, which are flagellated. They are fusing with each other to form a diploid cell, which is wrapped within
दिस इज नोन एज जाइगोस्पोर। ये 2n सेल ना जाइगोस्पोर के अंदर है। सो देयर इज डिफरेंस इन बिटवीन जूस्पोर एंड जाइगोस्पोर। फिर से एक बार लिखो, जाइगोस्पोर in which 2n zygote is wrapped, zygospore in Chlamydomonas, zygospore in Chlamydomonas, where 2n zygote is wrapped in protective, 2n zygote is wrapped in protective covering. 2n zygote is wrapped in protective covering. So this is known as zygospore. अब zygospore में मियोसिस होगा, 2n सेल है ना इसके अंदर, इसमें मियोसिस होने के बाद ये जो 4 सेल बनी उनको बोलेंगे जूस्पोर। लिखिए, जूस्पोर डैश फ्लैजेलेटेड spores, flagellated dash n यानी haploid, flagellated n spores forming after meiosis, in zygospore, meiosis in zygospore. तो ये लाइफ साइकिल एक सिंपल लाइफ साइकिल है जिसमें किस प्रकार से दो आइसोगमेट्स, आइसो इसलिए बोला बिकॉज दिस टू आर सिमिलर गमेट्स, दे आर फ्यूजिंग टू फॉर्म 2n zygote. Zygote is wrapped over by the protective covering, and whenever favorable conditions again appear, the protective covering is tearing up to release the zoospores. Why these spores are called as zoospores? Because they are flagellated. Zoo word indicates they are motile, because only animals are motile na. So why they are called as zoospores, though these are spores of algae? Why they are called as zoospores? Because they are motile, they are flagellated. Then again asexual reproduction तो बिल्कुल आसान है, जैसे 1 से 2, 2 से 4 माइटोटिकली डिवाइड होती है ना सेल्स, उस प्रकार से यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. दैट इज़ वेरी फास्ट प्रोसेस. जब फेवरेबल कंडीशंस रहती है तो ये क्लैमाइडोमोनास एंड अदर algae they grow very very fast when the organic contents are available in water and the temperature, pH and water availability is there and light is there, because algae require light. They will divide very fast by asexual reproduction, not by sexual. पक्का हो गया? asexual during favorable, sexual during unfavorable conditions. Similar is the case in Spirogyra, but Spirogyra show one important thing normally, and that is called as conjugation. Conjugation Spirogyra में दिखता है, वो यहाँ पे अगर मेरे पास इसका फ़ोटो नहीं है तो दूसरे चैप्टर में मिल जाएगा. वो किंगडम प्लांटी में शायद मैंने स्पायरोगैरा जब दिखाया था तब उसमें मैंने कॉन्जुगेशन भी आपको दिखाया था. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्टेम, if the modification of stem is utilized for natural vegetative propagation, then the names of the stem modifications are bulb, corm, tuber, runner, rhizome. और this is also the part of morphology. ये सभी लेसन्स में आता है, इसीलिए मैं कैसा करती हूँ कि पूरा आपको फास्ट पढ़ा देती हूँ और उसके बाद हम फिर से रिवाइज करते हैं. जब सेकंड रिवीजन होती है ना तब और अच्छे से समझ में आता है, बिकॉज ऑल लेसन्स आर इंटर रिलेटेड. सो दिस इज़ रनर ऑफ स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रैगेरिया. फ्रैगेरिया स्ट्रॉबेरी, उसका ये रनर आपको दिख रहा है. ये बल्ब है. ओनियन और गार्लिक में ऐसे बल्ब्स दिखते हैं. ये स्टेम ट्यूबर है. जैसे वेजिटेटिव या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्टेम ट्यूबर के ऊपर बर्ड्स होते हैं ना, आइज़ बोलते हैं ना उनके, तो यहाँ से नया प्लांट आ रहा है. ये कॉर्म है. ये ना एक्चुअली ट्रापा है. ट्रापा का मतलब होता है शिंगाड़ा. ये ट्रापा
ट्रापा है नाही शिंगाडा, शिंगाडा आहे हा, कळलं ना तुम्हाला? दिस वन, ये ग्रीन वाला जो है शिंगाडा है ये, और हाँ ये कॉर्म है. दिस इज राइजोम, प्रोस्टेट. राइजोम ये दोनों है, यानी अदरक और ये वाला टेरीस का राइजोम दिख रहा है आपको. टेरीस यानी फर्न में भी राइजोम रहता है. एंड दिस इज जिंजीबार ऑफिसिनाले, दैट इज अदरक. एग्जाम्पल्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अब स्पोर फॉर्मेशन को भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोला है? क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ आप लिख लीजिए कि प्लांट्स लाइफ साइकिल passes through asexual and sexual phases of reproduction. Asexual and sexual phases of reproduction. Spore formation is by asexual method. Sorry. 1 minute, huh? स्पोर फॉर्मेशन में मियोसिस हो रहा है, तो स्पोर फॉर्मेशन इज असेक्सुअल एंड गमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन इज सेक्सुअल मेथड. यस, इट इज करेक्ट. स्पोर formation and by germination of spore there is formation of gametophyte. This is asexual part of the life cycle of plant. मैं फिर से एक बार बताती हूँ. spore formation and then by germination of spores, लिखो spore formation, arrow देके लिखो, by germination of spore gametophyte formation is asexual path. Spore formation and then by germination of spore gametophyte formation is a asexual path. Okay. Then next line में आप लिखिए कि within gametophyte gametes will form, they will fuse to form zygote. Within gametophyte gametes will form and then they will fuse to form zygote. एरो देके लिखो स्पोरोफाइट, यानी ज़ाइगोट से क्या बनता है? स्पोरोफाइट. और फिर से डैश देके लिखो सेक्सुअल पाथ, क्योंकि यहाँ पे गमेट का फ्यूजन हुआ है, हेंस इट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल पाथ. सो स्पोरोफाइट फॉर्मेशन इज सेक्सुअली एंड गमेटोफाइट फॉर्मेशन इज असेक्सुअली. ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. फिर से लिखेंगे आप, स्पोरोफाइट फॉर्म्स सेक्सुअली एंड गमेटोफाइट असexually. लिखो. हाँ, अगर वो जो लिखा वो अच्छे से समझ में आ रहा है तो फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है. स्पोरोफाइट फॉर्म्स सेक्सुअली एंड गमेटोफाइट फॉर्म्स असexually. ये ना स्पाइडर प्लांट यहाँ पे दिख रहा है, जिसका ये छोटा सा प्लांटेड उससे निकला हुआ, जो कि नए प्लांट में कन्वर्ट होने वाला है. सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? ट्यूबरस रूट का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? आइपोमिया बटाटस, डहेलिया, एस्पैरागस. ये रिविजन है. इस पूरे का जो शॉर्ट में डाटा दिया है ना, वो मेरे मॉर्फोलॉजी के नोट्स में दिया है. एंड यू कैन ऑल्सो रीड यूर state board textbook. In that also all these examples are given. So Dahlia and asparagus show fasciculated tuberous roots, and Ipomea batatas shows simple tuberous roots. Simple tuberous roots, Ipomea batatas, and fasciculated tuberous roots, Dahlia and asparagus. So these are fasciculated. Fascicles का मतलब बंडल होता है. This is very commonly used word in zoology and botany. हमने देखा ना fascicles, मसल्स के fascicle देखे कि नहीं हमने? हाँ, तो fascicles का मतलब क्या है? अगर अभी भी याद नहीं है तो लिखो fasciculated dash bundled.
fasciculated roots. They are present in bundle. Dahlia asparagus. This is simple tuberous root. आइपोमिया बटाटा से. और ये वाले fasciculated, ये जो अभी दिखाए मैंने, देखो बंडल में है ना, घोस में है ना वो. हाँ, अब ये जो पूरी मेथड्स है ना, इनको हम बोलते हैं लेयरिंग. ये जो दिख रहा है इसे बोलते हैं एयर लेयरिंग. आप एक काम कीजिए, अपने कॉपी में लिखते जाइए जो भी मैं आपको आर्टिफिशियल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रही हूँ. हेडिंग दीजिए आर्टिफिशियल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. फर्स्ट नंबर लेयरिंग. आर्टिफिशियल asexual reproduction in plants. First number layering. Outer part of stem, outer cortex हम बोल सकते हैं या epidermis हम बोल सकते हैं. epidermis of young but sturdy stem at the nodal region. Outer epidermal part of sturdy stem, young but sturdy, जो भी sturdy stem, young but sturdy. देखो अगर आप इतनी बड़ी ब्रांच लेंगे ना आम के पेड़ की, और उसका जो आउटर कवरिंग है वो टोटली ब्राउन हो चुका है, ब्लैकिश ब्राउन वो आपको दिख रहा है, उस पर आप लेयरिंग नहीं कर सकते हो. ब्रांच कैसी चाहिए जिसके ऊपर आप लेयरिंग कर सकते हो? ग्रीन चाहिए, लेकिन बहुत पतली भी नहीं, वो स्टर्डी चाहिए, उस पर आप लेयरिंग कर सकते हो. तो मैंने क्या बताया? यंग बट स्टर्डी. दैट शुड बी ग्रीन, दैट शुड नॉट बी ब्राउन. यू कैन राइट दिस, विच इज़ ग्रीन नॉट ब्राउन. is selected and the outer epidermis at the nodal region is scratched out. Outer epidermis at the nodal region is scratched out. Nodal region has meristematic cells. Nodal region has meristematic cells which can differentiate into roots. Which can differentiate into roots. तो सबसे पहले एक ऐसी ब्रांच सिलेक्ट की, थोड़ी सी ग्रीनिश चाहिए, वो स्टडी चाहिए, ये दिख रही है ना आपको. और फिर इसका आउटर एपिडर्मिस स्क्रैच आउट कर लिया, लेकिन नोडल रीजन का किया है क्योंकि नोड में ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहती है, इंटरनोडल रीजन में वो नहीं रहती. तो नोड के ऊपर या नीचे मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहती है, तो नोडल रीजन का पार्ट थोड़ा सा स्क्रैच आउट किया. और उसके ऊपर यानी इसके ऊपर थोड़ा सा ऑक्सीन अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ऑक्सीन विल प्रमोट रूटिंग. ऑक्सीन कैन बी अप्लाइड, लिखो, ऑक्सीन कैन बी अप्लाइड टू प्रमोट रूटिंग. ऑक्सीन कैन बी अप्लाइड टू प्रमोट रूटिंग. देन मॉस यानी पीट मॉस हम जिससे बोलते हैं ना, वो स्पैगनम या हेल्दी सॉइल, हेल्दी एंड मॉइस्ट सॉइल इज रैप्ड ओवर दैट स्क्रैच्ड आउट रीजन. वेयर एवर द एपिडर्मिस इज स्क्रैच्ड आउट, उसके ऊपर क्या लगाया है? ये पीट मॉस या मॉइस्ट सॉइल लगाई है. लिखो एरो देके, ओवर दैट पीट मॉस और हेल्दी मॉइस्ट सॉइल
is wrapped. Peat moss or healthy moist soil is wrapped. What do you mean by healthy soil which doesn't show any pathogen? Which doesn't show any pathogen, that is called as healthy soil. नहीं तो आप यहाँ पे रैप करेंगे और वहाँ पे पूरा फंगस डेवलप हो जाएगा. आपको पता है हेल्दी सॉइल ये सूंघने से भी पता चलती है, उसकी बहुत सुंदर सुगंध आती है. और गंदी अगर आ रही है तो वो मत यूज़ करो. हाँ, तो हेल्दी सॉइल वहाँ पे आप लगाएंगे. या फिर ट्राइकोडर्मा जैसे एंटी फंगल बट फंगल, यानी सॉरी, द ट्राइकोडर्मा इज फंगस अगेंस्ट फंगस या फंजाई अगेंस्ट फंजाई, हम ट्राइकोडर्मा को बोल सकते. तो वो मॉइस्ट सॉइल में हमने थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा भी डाल दिया है ताकि पैथोजेनिक फंजाई वहाँ पे नहीं डेवलप होंगे, और वहाँ पे रैप कर दिया. ये देखा आपने, लास्ट लाइन क्या लिखी है, पढ़ो. हाँ, and it is tied along with butter paper. That soil is tied over that region with the help of butter paper. और फिर इस बटर पेपर को ना थोड़े से छेद करेंगे. छेद क्यों करेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन मिलना चाहिए. अब कुछ दिनों बाद ये देखो, इसको रूट्स आ गए, ठीक है ना. सो आफ्टर सम डेज दिस पर्टिकुलर ब्रांच कैन बी कट फ्रॉम द मदर प्लांट. देखो, आफ्टर सम डेज दिस रूटेड ब्रांच कैन बी कट फ्रॉम द मदर प्लांट. देखो, आफ्टर सम डेज द रूटेड branch can be cut from the mother plant and can be planted or inserted into the soil in pot. So this is known as air layering. डैश दे के लिखो, this is air layering. Similarly, soil layering can be done with vine. Similarly, soil layering can be done with vine. यानी वाइन के लिए क्या करेंगे, वेली है वो, तो उससे पूरा झुकाएंगे नीचे और उसका उसी प्रकार से बाहर का एपिडर्मिस थोड़ा सा स्क्रैच आउट करके ऑक्सीजन अप्लाई करेंगे. और जिस ब्रांच को वो जैसे मदर प्लांट को अभी भी अटैच्ड है उसको पूरा नीचे लाके ज़मीन में दबा देंगे, तो उसको हम सॉइल लेयरिंग बोलेंगे. और कुछ दिनों बाद वहाँ पे रूट्स आ जाएंगे तो आप मेन प्लांट से उसे कट करके एक नया प्लांट आपके पास बन गया. So this is known as layering. Is it clear? Then second method हम देखते हैं, वो है ग्राफ्टिंग. हाँ, ग्राफ्टिंग सेकंड मेथड लिखो. ग्राफ्टिंग लिख लिया. उसमें अगर मैं आपको वेज ग्राफ्टिंग के बारे में बताती हूँ, 1 मिनट. Grafting is the horticultural process and it is a quicker method to propagate a particular kind of plant having good properties, and those properties will be maintained. If many branches arise over a mango tree which is very good in properties, the mangoes are very sweet and they are huge, large, and the produce is very good, then many plants can be produced with the help of a single plant. हाँ, तो ये कैसे होंगे
कि एक ये इंस्ट्रूमेंट है ना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और ग्राफ्टिंग करते हुए भी हमें पहले स्टरलाइजेशन करना पड़ेगा, बिकॉज हियर अगेन वी आर प्लेइंग विद द प्लांट टिश्यूज़। जैसे हमारे शरीर में सर्जरी होती है, वैसे ये प्लांट के शरीर की सर्जरी है। हेंस द गुड कंडीशंस, और वी कैन से द स्टरलाइज्ड कंडीशंस शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग ऑल्सो। तो इस प्रकार से नाइफ्स होते हैं जिससे, और जो इंडिजिनस वैरायटी यूज़ की जाती है, बिकॉज इट विल शो गुड रूट सिस्टम। इंडिजिनस varieties always has good root system, and the graft which is done over that particular indigenous variety. Indigenous doesn't mean from India. Indigenous means from that particular region only. That is indigenous, है ना। और वो लोगों ने क्या किया कि हमें इंडिया बोला। इंडिया का मतलब पता है? आदिवासी। पता है? इंडिजिनस, आदिवासी। हमें इंडिया क्यों बोला? क्योंकि उनको लगता था कि हम आदिवासी हैं, हम आगे, हमारी संस्कृति आगे नहीं गई है, ऐसे उनको लगा, इसीलिए हमें उन्होंने इंडिया बोला। लेकिन हमारे देश का नाम भारत है, हमने भारत ही बोलना चाहिए। इंडिया ये शब्द एक्चुअली ये बताता है कि वी आर नॉट डेवलप्ड, बट वी वेयर एक्चुअली डेवलप्ड एट दैट टाइम व्हेन दे एंटर्ड इन आवर कंट्री। उसके भी पहले कई हज़ार सालों से हमारी संस्कृति कितनी आगे गई है पता है। ये सब चीज़ें तो पहले से होती है। ये सभी चीज़ें या एग्रीकल्चर के बारे में अथर्ववेद में लिखा हुआ है, और वृक्षायुर्वेद करके उसी का एक पार्ट है जिसमें पूरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कैसे करेंगे। जैसे आपके शरीर में के लिए मैं बताती हूँ कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, तो शरीर के बारे में आयुर्वेद में लिखा है, और वृक्ष के शरीर के बारे में वृक्षायुर्वेद में लिखा हुआ है। तो आवर हॉर्टिकल्चरल एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वे आर ऑल्सो ग्रेटली डेवलप्ड। तो वी आर नॉट इंडियन्स, वी आर भारतीय। आपण भारतीय आहोत। हाँ, तो ये इंडिजिनस का मतलब क्या है? इंडिजिनस वैरायटी यानी क्या? वहीं पे रहने वाली, या इंडिजिनस का मतलब आदिवासी होता है। सो दिस इज़ व्हाट, ये बर्ड दिख रहा है आपको, ये नोड के ऊपर का बर्ड दिख रहा है। ये बर्ड को नाइफ से काट लिया। मैं पहले बर्डिंग के बारे में बताऊं कि ग्राफ्टिंग के बारे में बताऊं? पहले ग्राफ्टिंग। 1 मिनट। ठीक है, जो जो फिगर्स दिख रहे हैं उसके बारे में बताऊंगी तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, 1 मिनट। हाँ, आपने ग्राफ्टिंग लिखा है क्या? लेकिन अभी क्या हेडिंग क्या दिया आपने? ग्राफ्टिंग दिया है। ओके, तो आप लिखिए, द स्टॉक ऑफ इंडिजिनस प्लांट विच कैन प्रोड्यूस, स्टॉक को अंडरलाइन करो, stock of indigenous plant which can produce good root system. Indigenous plant which can produce good root system is selected, and the scion is selected from the variety which produce good fruits. SCION, scion is selected from the variety which produce good fruits or good quality flowers. If we are doing grafting in roses, then it is for flowers.
तो अच्छी क्वालिटी का एक स्टॉक सिलेक्ट किया और उसके ऊपर ये वाला जो है ना, ये सियॉन है, उसका इम्प्लांटेशन किया। अब इम्प्लांटेशन करने के लिए एक वेज शेप्ड इंडेंशन बनाया स्टॉक के ऊपर। हाँ, ये आपको दिख रहा है, वेज शेप्ड, ऐसे वी, ऐसे वेज शेप्ड इंडेंशन इज प्रिपेयर्ड ओवर द स्टॉक इन विच द complementary surface of the scion is tied with the help of polythene strip. हाँ, wedge shaped indentation is created, लिखो, wedge shaped indentation is created over stock and scion, 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 which is cut into complementary surface, एक मिनट, हाँ, which is cut with complementary surface to scion, which is cut with complementary surface to scion is inserted in stock. Both are tied with polythene strip. Both are tied with polythene strip, strip. Scion is prepared with complementary surface to stock, and both are then the scion is inserted into the stock and both are tied. Scion is inserted into stock and both are tied with polythene strip. अब यहाँ पे क्या होगा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, लिखो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स विल ग्रो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स विल ग्रो, एरो दे के लिखो, कैलस फॉर्मेशन, एरो दे के लिखो, कैलस फॉर्मेशन, एरो, differentiation of tissues to form, differentiation of tissues to totally join two sticks, differentiation of tissues to totally join stalk and scion, ऐसे लिख सकते हैं, totally join stalk and scion. अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया, इसे कट किया, देखो, इसको ऊपर से कट किया, इसमें एक खांच बनाई, इंडेंशन बनाया, देखो दिख रहा है, इसमें एक खांच बनाई, और ये ब्रांच दूसरे प्लांट से लाई है जिसके फल या फूल बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें यूज़ करना है स्टॉक की रूट सिस्टम और इसकी फल फूल प्रोड्यूस करने वाली प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो एक हद ये ग्वावा का प्लांट आपको दिख रहा है, तो ऐसे झाड़ हो सकता है ना कि जो बहुत सुंदर और बड़े बड़े ग्वावा दे रहा है, लेकिन वो उस एरिया में अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वी विल यूज़ रूट सिस्टम ऑफ नॉर्मल इंडिजिनस ग्वावा एंड ओवर दैट द स्टॉक ऑफ सियॉन ऑफ, क्योंकि जिसका इम्प्लांटेशन करेंगे उसको बोलेंगे सियॉन और जिसकी रूट सिस्टम यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे स्टॉक विथ रूट सिस्टम, सियॉन विल प्रोड्यूस शूट सिस्टम। हाँ, ये मैं लिखा के देने वाली हूँ आपको। ये इम्प्लांटेशन इसके ऊपर कर दिया, पहले क्या होगा, वहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड मास प्रोड्यूस होगा कैलस, फिर डिफरेंशिएशन एंड देन देयर विल बी टोटली जॉइनिंग ऑफ स्टॉक एंड सियॉन। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ shoot will be like that of scion and properties of root will be like that of stalk. अभी आपने क्या लिखा, पढ़ो लास्ट सेंटेंस। हाँ, so the shoot system will show properties of
shoot system will show properties of scion, and root system will show properties of stalk, and that we have selected as indigenous, and that it will thrive very well in that particular area. ओके हाँ, इसी प्रकार से ना बडिंग भी होता है. मैं बडिंग लिखा के नहीं दूंगी आपको, जितना भी स्टेट बोर्ड में दिया है ना वो भी आप करेंगे तो चलेगा, बट आई विल टीच यू. देखो अब बडिंग में क्या होता है कि ये नोडल रीजन है जो आपको दिख रहा है ना. सपोज इसके पहले क्या दिया है, सपोज दिस इज नोडल रीजन. और नोडल रीजन में ये बर्ड दिख रहा है ना, यहाँ पे पहले पत्ता भी हो सकता है, उसको धीरे से निकाल लिया क्योंकि नोडल रीजन में ही बर्ड होता है और लिव भी होता है, लिव का पेटियोल भी वहीं पे अटैच्ड होता है, उसको धीरे से निकाल दिया. अब ये हॉर्टिकल्चरल नाइफ्स जो होते हैं ना, बहुत ही महीन सर्जिकल नाइफ्स जैसे ही होते हैं, वो डेलिकेट बट वेरी शार्प. तो उससे क्या किया, ये बर्ड यहाँ से निकाल लिया. अब ये बर्ड दूसरा प्लांट लिया, वहाँ का भी बर्ड निकाल लिया, लेकिन इस बर्ड के लिए वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सरफेस क्रिएट किया गया. देखो अब इसमें उसी बर्ड का इम्प्लांटेशन करना है. तो इम्प्लांटेशन के लिए कैसे करेंगे, एक ऐसे नाइफ से चीरा मार दिया और यहाँ से अभी कट कर रहे हैं. तो ये कैसे कट किया जा रहा है, देखो यहाँ से चीरा मार दिया, यहाँ से चीरा मार दिया, और बीच में से परपेंडिकुलर एक चीर या हम बोल सकते हैं कट किया, परपेंडिकुलर वे से उसे कट किया, और ये बाहर का रीजन उसका निकाल लिया. निकालने के बाद जो बर्ड उस प्लांट से लाया था वो उसमें इंसर्ट कर दिया. जो दूसरे प्लांट से बर्ड लाया है ना, वो उसमें प्रॉपरली इंसर्ट कर दिया, और इसको भी पॉलीथीन से रैप कर देंगे. देखो ये बर्ड दूसरे प्लांट से लाया हुआ बर्ड है, जो पहले तो जो मेन प्लांट है जिसमें बर्ड इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे भी उसे स्टॉक ही बोलते हैं और बर्ड को बोलते हैं सियॉन. Here the bird is known as scion and the mother plant is known as stalk. तो ये पॉलीथीन स्ट्रिप से बांध देंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं बांधेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ से नया ब्रांच निकलने वाला है, इसलिए ये नोडल रीजन से नहीं बांधेंगे, बाकी पूरा बांध देंगे. देखो पूरा बांध दिया, सिर्फ यहाँ से नहीं बांधा है. तो क्या होगा, टिश्यूज़ रीजनरेट, कैलस का फॉर्मेशन होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा सेल्स का, और बर्ड से नई सेल्स बनने लगेंगी. बट द ब्रांच विच इज़ इमर्जिंग आउट फ्रॉम दिस रीजन विल शो different flowers than that of the main mother plant. Suppose this is the pink rose plant, लेकिन आपने ये बर्ड लगाया ना, वो कहाँ से लाया था, वाइट रोजेस से लाया था. तो उसी पिंक रोज के प्लांट को एक ब्रांच ऐसी आएंगी यहीं से जो वाइट रोजेस दिखाएंगी, वैसे आप दूसरा ऑरेंज रोजेस उसी प्लांट के ऊपर निकाल सकते हो. ऐसे बहुत सारे 4-5 कलर के रोजेस एक ही प्लांट के ऊपर आप बडिंग से बना सकते हो. दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बडिंग. वेज ग्राफ्टिंग इसे बोलते हैं हम. ये तो बर्ड ग्राफ्टिंग है, वेज जो पहले मैंने दिखाया था. आप देखिए इस मेन स्टॉक के ऊपर कितनी सारी ब्रांचेस लगाए, और हर एक ब्रांच अलग फूल या फल दे सकता है. नाउ सी, ये और भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए
डलबर्जिया, अल्बिजिया, मुराया एंड ग्वावा, ये ऐसे 4 प्लांट्स है कि जो रूट्स से ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। आपने मुराया या कड़ी पत्ता का झाड़ देखा है, उसके रूट से ही बाकी के प्लांट्स आते रहते हैं। एक जो मदर प्लांट है ना, उसके नीचे से कितने सारे प्लांट्स आते हैं छोटे छोटे छोटे, वो उसके रूट से आ रहे हैं। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय रूट्स, कॉपी में लिखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय रूट्स, रूट बर्ड्स भी बोल सकते हैं हम, बाय रूट्स लिखो। और भी एक पिक्युलरिटी है, बाय नॉन फ्लेशी रूट्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन फ्लेशी रूट्स, ऐसे अपने लिखना चाहिए, क्योंकि ये सभी प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनके रूट्स फ्लेशी नहीं है, ट्यूबरस नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन फ्लेशी रूट्स, डैश दे के लिखिए। डलबर्जिया, यू कैन सी द स्पेलिंग, डलबर्जिया जिसको शीशम बोला जाता है, शीशव, शीशव वृक्ष, ओके, डलबर्जिया, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ये। और शीशम की लकड़ी सबको पता है, इससे कुछ भी बन सकता है। ये अल्बिजिया, कॉमा दे के लिखो, अल्बिजिया, डलबर्जिया, अल्बिजिया, मुराया, मुराया का मतलब होता है कड़ी पत्ता, जल्दी जल्दी, डलबर्जिया, अल्बिजिया, मुराया, ग्वावा। पे अटेंशन, मुराया, MURRAYA, MURRAYA, मुराया, कड़ी पत्ता, मुराया। ओके, ग्वावा भी, कॉमा देके ग्वावा लिखो। लिख लिया? हाँ, ये क्या करते हैं, नॉन फ्लेशी रूट्स से, और ऊपर हमने फ्लेशी रूट्स का तो लिखा ही, और मॉर्फोलॉजी में वो आता ही है, लेकिन ये नॉन फ्लेशी का मैंने अलग से बताया, उसके ऊपर भी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्लेशी के 2 प्रकार हमने देखे ना, फ्लेशी रूट्स के, आइपोमिया बटाटस, ट्यूबरस फ्लेशी रूट्स, और फैसिक्युलेटेड ट्यूबरस में हमने एस्परागस और डहलिया देखा, वो भी हो गया। और ये नॉन फ्लेशी से आने वाले हैं। अब स्टेम से जो दिख रहा है, ये देखो, द लोअर ब्रांच विल शो वन tuberous structure which is actually stem tuber, it is not root tuber, it is stem tuber, and that will form potato, potato में convert होगा, this is potato। then bulb, ये तो सबको पता ही है, राइजोम भी सबको पता है। ये एपीफाइलस बर्ड से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ब्रायोफाइलम। 4 नाम कौन से हम याद करते एपीफाइलस बर्ड के द्वारा, ब्रायोफाइलम, कलांचोई, बेगोनिया, सेंसिवेरा, ब्रायोफाइलम, कलांचोई, बेगोनिया, सेंसिवेरा, आपने लिखे हैं ना 4 नाम, ब्रायोफाइलम, कलांचोई, बेगोनिया, सेंसिवेरा। और एक बार लिखो, एपीफाइलस बर्ड, ब्रायोफाइलम, कलांचोई, KAL, कलान, LANCHOE, कलांचोई, ब्रायोफाइलम, कलांचोई, बेगोनिया, सेंसेइवेरा। मदर इन लॉज टंग बोला जाता है सेंसेइवेरा को, क्योंकि मदर इन लॉज टंग, सेंसेइवेरा नहीं पता आपको, कारण पता चलेगा देखते ही। देखो, इसे बोला जाता है मदर इन लॉज टंग, ये वाला, दिस वन, सेंसेइवेरा। सेंसेइवेरा, कलांचोई, ओके। और ये ना सब मॉर्फोलॉजी में भी बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है, वो जो शॉर्ट नोट्स मैंने दी ना, उसमें ये सब कवर होता है। अब ये जो दिख रहा है वो वीवी पेरी दिख रही है, वीवी पेरी भी और एक बार हम ग्रोथ में देखने वाले हैं, जो कि दिखता है
मैंग्रोव्स में जो सुंदरबन जैसे डेल्टा रीजन में रहते हैं मैंग्रोव प्लांट्स, उसमें दिस इज़ नोन एज vivipary because radicle comes out when the fruit is still attached to plant. That is called as vivipary. मैं यही फ़ोटोज़ आपको दिखाने जा रही थी कि वेज ग्राफ्टिंग यानी क्या होता है. देखो दिस इज़ बेगोनिया. हाँ, ये बेगोनिया है और ये सेंसेवेरा है. वेज ग्राफ्टिंग. तो वेज ग्राफ्टिंग किस प्रकार से होता है कि दिस इज सियॉन एंड दिस इज स्टॉक. दिस इज व्हाट? सियॉन एंड स्टॉक. आपको समझना है बहुत अच्छे से. दिस इज कॉल्ड एज टंग ग्राफ्टिंग. मैं एक काम करती हूँ, ये सभी प्रकार के ग्राफ्टिंग के लिए जो फिगर है ना वो आपके ग्रुप के ऊपर भेज दूँगी. आज के आज आपको वो कॉपी में उतारनी है. सियॉन एंड स्टॉक. This kind is called as wedge grafting and this is called as again tongue grafting, क्योंकि यहाँ पे 3 surfaces एक दूसरे से अटैच हो रहे. 1 2 3. इस प्लांट का देखो 3 सरफेस एक दूसरे से अटैच हो रहा है. देखो ये बर्डिंग किया जा रहा है, बर्ड इंसर्ट हो रहा है वहाँ पे, बर्डिंग है ये. और इसे बोला जाता है अप्रोच ग्राफ्टिंग. अप्रोच का मतलब क्या है कि ये दोनों का अप्रोचिंग सरफेस एपिडर्मिस उसका स्क्रैच आउट किया जाता है. दोनों प्लांट्स के अप्रोचिंग सरफेस पे आने वाले एपिडर्मिस को स्क्रैच आउट करेंगे और ये सब जो चीज़ें करेंगे वो नोडल रीजन से करेंगे, क्योंकि नोडल रीजन से ही वो जुड़ सकते हैं. आप कहीं से भी जोड़ेंगे तो जुड़ेंगे नहीं वो 2 प्लांट्स. और जुड़ने के बाद क्या हुआ कि ये स्टॉक, देखो दिस वन इज स्टॉक, ये इंडिजिनस स्पीसीज़ का स्टॉक है और ये दूसरे स्पीसीज़ का सियोन से अटैच हो गया. अब ये स्टॉक की ब्रांच भी काट दो और ये सियोन का जो रूट था वो भी काट दो, तो ये प्लांट हो गया एक, जिसका ये वाला है सियोन और ये वाला स्टॉक. दिस इज़ अप्रोच ग्राफ्टिंग. दिस इज़ टंग ग्राफ्टिंग, क्योंकि 3 सरफेसेस. ये ग्राफ्टिंग से इस प्रकार से किया है. एक ही स्टॉक के ऊपर बहुत सारे ग्राफ्ट भी लगा सकते हो, उसे बोला जाता है क्राउन ग्राफ्टिंग. एक ही प्लांट के ऊपर बहुत सारे ग्राफ्ट अगर लगाए तो दैट इज कॉल्ड एज क्राउन ग्राफ्टिंग. दिस इज क्राउन ग्राफ्टिंग. समझ में आया? ग्रीन हाउस में टोमेटोज आपको दिख रहे हैं. हाँ, ये पूरी प्रोसेसेस मैंने खुद ने भी की है. और हाँ, मैं एक चीज़ आपको लिखा के देना चाहती हूँ कि प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय सच प्रोसेसेस लाइक ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग एट्सेट्रा शो vigorous ग्रोथ, है ना. आर्टिफिशियल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जैसे ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग से जो भी प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, दे शो vigorous growth and flowering and fruiting earlier than that of plants flowering and fruiting earlier than that of plants prepared from seeds. Flowering and fruiting earlier than that of plants prepared from seeds. Is it clear? सो ग्राफ्टिंग, बर्डिंग, कटिंग से जो प्लांट होंगे ना, एक्चुअली वो ब्रांच अच्छे से पहले से बनी है. रूट सिस्टम देखो आप, पहले से बनी है अच्छे से, इसीलिए अगर आप सियॉन डालेंगे और जल्दी 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 उसको आएगा. ग्राफ्टेड प्लांट्स गिव good results than that of the normal plantlet which comes from the seed. So this is about artificial asexual reproduction. Artificial asexual reproduction. Here we have completed artificial asexual reproduction. The next part is of sexual reproduction that we will see in next period.